So hello everyone and welcome to Career Launcher. In today's class, we are going to discuss revision. It's a GK current affairs revision for the upcoming SLAT exam, which is supposed to happen. The second slot is supposed to happen tomorrow. तो एक slot तो कल हुआ था, है ना? And for that, that analysis has already been done. तो अगर आपने नहीं देखा है slot 1 का analysis, so please go and watch it. The slot 1 analysis is already done. और यहाँ पर जैसे आप जाना go to our YouTube channel, subscribe to it, go to the live section and please watch it. There were 12 questions that were asked, है ना? Generally 12 questions are asked in SLAT in the GK and current affairs section. Okay, so most likely something similar would be the case for the upcoming next slot, that is tomorrow. So am I audible, visible? Everything is fine? Is my voice clear? Is everything fine? So just write yes before we can start our session. Okay, fine. Okay. तो इसमें क्या है कि मैंने ये क्या है आज की क्लास में so there'll be questions which will be PYQs और PYQs associated, या जिस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चंस कल पूछे गए थे जिस तरह से, उस पैटर्न में मैं क्वेश्चंस आज डिस्कस कराऊंगा. और कुछ नई टाइप की चीजें जो पूछी जा रही है उसको भी मैं डिस्कस कराऊंगा, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I believe that something similar type of questions would be asked in the exam. तो ये 12 क्वेश्चन तो पहले आप देख लेना कि if by chance अगर ये रिपीट हो जाता है स्लॉट 2 में, मान लो एक क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए तो क्यों मिस हो, है ना? So that is what you should be knowing about. So let us begin with the questions. देखो कल जो क्लास हुई थी उसमें उन लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज एंडेड आफ्टर विच इंसिडेंट. इसका मतलब दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन नेशनल मूवमेंट आल्सो. ठीक है, तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे थे. इंडियन नेशनल मूवमेंट इंपॉर्टेंट इवेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर. देन सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. रॉलेट एक्ट, ठीक है. देन क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था, कौन से ईयर में आया था. देन वी हैव क्विट इंडिया मिशन. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी आस्क्ड. ठीक है, उस पैटर्न पे, बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर. Because कोई इतना उनका फिक्स पैटर्न तो है नहीं, but this is how, since they are asking this type of questions, you should know. तो आपको ये क्वेश्चन है, the जलियांवाला बाग massacre happened in which year and which city you will find, please tell me, and who was the army officer responsible for this. Yes, Pradipta, you are right. A is the right answer. It is actually 13th April 1919. Which city, कौन से शहर में? तो जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग is in Amritsar, and the army officer who entered it is called as General Dyer. Yes, Mishika, right. Okay, and at that time who was the lieutenant governor of Punjab? बताइए. He was killed by Udham Singh, lieutenant governor of Punjab at the time of Jallianwala Bagh incident. ये मैंने बताया था, I still remember in some classes. माइकल ओ डॉयर, है ना? So he was killed by Udham Singh in, I think when he went back, he was killed in England. So this is what you should be knowing about. So A is the right answer. Now, अच्छा अब ये बताओ, इससे पहले एक इवेंट हुआ था. This happened on 13th April 1919. इससे जस्ट पहले मार्च 1919 में a law was brought. उस लॉ का नाम बताइए. By the British, which was called as Black Act. What is that law? What's the duration? 45 minutes के आसपास की क्लास होगी. वरदान. हाँ, so Black Act is Rowlatt Act 1919, and it was criticized because police can arrest you for 2 years without trial. This is what you should be knowing about. ठीक है, तो ये आप लोग को first thing पता होना चाहिए. Now, what happened was
कि उसके बाद जो है द प्रोटेस्ट हैपन एंड द टू famous personalities in Punjab got arrested. These two personalities were Satyapal and Saifuddin Kichliu. है ना, ये मैंने आपको बताया भी था कई बार. So when these two people were arrested as a part of Rowlatt Satyagraha protest, so to actually for the release of these two personalities, people had gathered in Jallianwala Bagh. इसीलिए लोग वहां पे बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे that Satyapal and Saifuddin Kichliu should be released. And then General Dyer came and killed so many people and all. So that is what you should be knowing. So A is the right answer. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपने देखा होगा, इसीलिए मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करा रहा हूँ. सो दिस इज पंजाब और यहाँ पे कैपिटल है उसकी अमृतसर. सो टुडे यू विल फाइंड जलियांवाला बाग वैसे प्लेस देयर. ओके, yes, so this is what you should know. R.E.H. Dyer, that was his full name, General Dyer का. So yes, Regional E. Dyer करके कुछ नाम था. So go and find out exactly. Okay, let us move on to the next one. Which of the following led to the beginning of civil disobedience movement? अभी इस साल क्लैट में क्वेश्चन पूछा था 2025 में इससे रिलेटेड, है ना. दूसरी बात, अगर आपने yesterday का SLAT का पेपर देखा होगा, SLAT slot 1 का, so they were asking questions from Indian national movement. हमने आपको बताया भी, है ना. What was the right and the island? Yes, Guru Ahluwalia, let me clarify since you are asking it. मैं उसको भी बता देता हूँ क्वेश्चन. ठीक है. Which of the following led to the beginning of civil disobedience movement? Okay, so the right answer is Dandi March. B is the right answer to this question. ये कल पूछा गया था. ये क्या है, कोई बता सकता है? Yesterday question. So the right answer here is Dandi March. Actually Dandi March हुआ था. This is the state of Gujarat. ठीक है. और यहाँ पर साबरमती आश्रम है, शेर अहमदाबाद, और ये डांडी है ना. सो गांधी जी वॉक्ड, है ना, और गांधी जी ने पैदल चला था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक. ओके, यस, साबरमती अहमदाबाद से. सो दैट इज कॉल्ड एज डांडी मार्च टू वॉयलेट द सॉल्ट टैक्स, है ना. और डांडी पहुंच के उन्होंने हाथ में सॉल्ट उठाया टू वॉयलेट द सॉल्ट टैक्स, है ना. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डांडी मार्च. ऑप्शन ए था नॉन कॉपरेट. हाँ, ऑप्शन ए यस्टरडे वाले एग्जाम में, जो कल एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था फरवरी 1922 में. व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट. ओके, सो उससे हुआ ये कि 22 policemen got killed in when the protesters were protesting. They burned the police station. 22 policemen got killed and all. तो गांधी जी ने इमीडिएटली स्टॉप कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. चौरी चौरा यू विल फाइंड इट इन मॉडर्न डे गोरखपुर के पास पड़ेगा, गोरखपुर ईस्ट यूपी में. सो नियर टू दैट यू विल फाइंड टुडे द चौरी चौरा. ठीक है. हाँ, पुलिस थाना में आग लगा दिया था. यस, that's the Chauri Chaura incident. So this you should be knowing. Then Gandhi Irwin Pact थोड़ा सा पता होना चाहिए. ये हुआ था मार्च 1931 में साइन हुआ था. And one of the agreement was that we will suspend the civil disobedience movement. Round table conference 3 हुआ था 1930, 1931 और 1932, which actually happened in London. और इसमें जो सेकेंड वाला है, इसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे. महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड वन. ठीक है. When was non-cooperation movement launched? So non-cooperation movement was launched in 1920. NCM was launched in 1920 and stopped in 1922 फरवरी with चौरी चौरा इंसिडेंट. ठीक है. ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे. That is what you should be knowing about. अच्छा, एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है. कल क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन ये आया था कि which country is having हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स. अगर नंबर, चूंकि मैंने भी चेक किया, आई ऑल्सो थॉट कि इंडोनेशिया हो गया, बट एक्चुअली आई थिंक द राइट आंसर इज स्वीडन. जब वो नंबर ऑफ आइलैंड्स अगर पूछ रहा है, ठीक है, सो आई चेक्ड इट एट डिफरेंट प्लेसेस एंड द आंसर वुड बी स्वीडन. अगर लार्जेस्ट आर्चपिलागो कंट्री पूछ रहा है तब इंडोनेशिया होगा, बिकॉज स्वीडन का जो मेन कंट्री है ना वो आइलैंड में नहीं है.
स्वीडन की मेन कंट्री इज नॉट एन आइलैंड, उसकी बहुत सारे आइलैंड्स है, सो नंबर ऑफ आइलैंड्स अगर पूछा जाए स्वीडन। लेकिन इंडोनेशिया खुद जो है ना वो एक पूरा ऑलमोस्ट आइलैंड, सारे आइलैंड से बनकर के जो मेन आइलैंड है वही खुद बना है। तो अगर ये पूछा जाए लार्जेस्ट आर्चपिलागो स्टेट, आर्चपिलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्चीपिलागो स्टेट ऐसा करके पूछा जाए, देन द आंसर वुड बी इंडोनेशिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, आई थिंक ये था क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, which country has, then whatever I could search also the answer is Sweden. ठीक है, is it clear? हाँ, जैसे बच्चे बता रहे थे कि स्वीडन भी था ऑप्शन में, तो देन द आंसर वुड हैव बीन, आई नो इट वाज अ डिफिकल्ट वन बिकॉज ये इतना लोगों को नहीं पता होता है, जनरली बाय डिफॉल्ट पीपल मार्क इंडोनेशिया, बट दैट वाज द आंसर। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज, देखो क्लासिकल डांसेस से अभी एलेट में क्वेश्चन आया 2025 में अभी, ठीक है, पूरा मैच द फॉलोइंग में, एंड क्लासिकल डांस तो नहीं कहेगा लेकिन डांसेस से स्लैट में कल भी क्वेश्चन आया था, वो एक बहुत टेढ़ा सा डांस पूछ लिया था, केरला का एक डांस, एंड दैट इज नॉट इवन अ क्लासिकल डांस, बट आई डोंट नो व्हाई दे आस्क्ड, तो इट मींस कि क्लासिकल डांसेस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू शुड नो। सो अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर देयर इन इंडिया, तो प्लीज नो, प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस करा दे रहा हूँ। The right answer is 8 classical dances are there. Yes, Dakshata is right. Lorena, you are also right. Super, right. So the right answer is B. 8 is the right answer to this question. अब आठों को मैं जिक्र डिस्कस करा देता हूँ बिकॉज आई फाइंड इट इंपॉर्टेंट नाउ, जिस तरह से एलेट और स्लैट ने क्वेश्चन पूछा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस। किसी ने कहा है सर मेजर इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के माइलस्टोन्स बता दीजिए। अच्छा, मैं बता देता हूँ, नहीं रिपीट नहीं करेंगे, बट उस टाइप के थीम से जब क्वेश्चन आ रहा है ना तो आपको उसी स्टाइल से पढ़ना है, मतलब दैट इज व्हाट द आइडिया इज, अदरवाइज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वी आर नॉट द क्वेश्चन मेकर, तो मैं कैसे बताऊं कि क्या क्वेश्चन आएगा, बट यस यस द राइट आंसर, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी छाऊ डांस, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको रिकॉग्नाइज करती है, बट संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से ये क्लासिकल डांस नहीं है। ठीक है, सो संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से, according to संगीत नाटक एकेडमी, these are the 8 classical dance: भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। Okay, so these are the 8 classical dance based on the idea of Sanskrit text, नाट्य शास्त्र and all, है ना। तो according to संगीत नाटक एकेडमी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 8+1 छाऊ डांस भी है। सो according to मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देयर आर 8+1 9 क्लासिकल डांस इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री आई थिंक इंडोनेशिया होगा। हाँ, यस, नथिंग, दिस वाज आल्सो आस्क्ड, क्या ये तो नहीं पूछा था। ओके, खैर, इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द क्लासिकल डांसेस। नाउ अब क्या हुआ था कि अगर आपने इस साल एलेट का क्वेश्चन देखा होगा तो आपने देखा होगा ये मैच द फॉलोइंग में ये सब पूछे थे कि कौन कहां से बिलोंग करता है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, इसीलिए आई फाइंड इट इंपॉर्टेंट, और दैट इज व्हाट यू शुड नो। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ना, वो साहित्य अकेडमी 8 क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज करता है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है 9। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम एंड देन आई विल एक्सप्लेन ऑल द 8 क्लासिकल डांसेस बिलोंग टू व्हिच रीजन एंड ऑल, वो मैं बताऊंगा। Yes, Pristine, Pradipta, just a chill guy. Ananya, Popar, Udita, Guri. हाँ, the right answer is Kerala. ठीक है, केरला में 2 बहुत फेमस है, कथकली है और एक मोहिनीअट्टम है। These are the 2 very famous classical dance। और एक जो कल पूछा था, मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा, ओतान उलूटा करके कुछ नाम है उसका, I don't remember the names। ठीक है, that was also from Kerala, but I don't know why they have asked it, that was slightly difficult। देखो ये 8 क्लासिकल डांस बहुत फेमस है, इसमें से एलेट में भी क्वेश्चन आया था और चांसेस है कि दे कैन आस्क। भारतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश से, और लेकिन कथकली जो है वो केरला से, इसी में डिफरेंस समझना है। देन कुचिपुड़ी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये भी पूछा था एलेट में। मणिपुरी ऑफ कोर्स मणिपुर, मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला,
ओडिसी फ्रॉम ओडिशा एंड सत्रिया फ्रॉम आसम. ठीक है. So these are 8 classical dances you should be knowing because of course they can ask it again. तो मैं यहाँ पे मैप सी के जरिए बता देता हूँ. देखो तमिलनाडु में भारतनाट्यम, इससे थोड़ा सा आसान होता है याद करना मैप के जरिए. ये केरला देख रहे हो, केएल केरला. केरला में 2 फेमस है, मोहिनीअट्टम एंड कथकली. देखो कथकली बता रहे, नॉट कथक. जबकि कथक जो है वो यूपी में, कथक इज इन यूपी. ठीक है. और ये है एपी, आंध्र प्रदेश आपको मिलेगा कुचिपुड़ी. और ये ओडिशा है तो ओडिसी, ये तो सिंपल है ना. सिमिलरली यहाँ पर मणिपुर है तो मणिपुर में मणिपुरी. है ना. तो यहाँ पे आसाम में बहुत फेमस है सत्रिया डांस. सत्रिया बहुत फेमस क्लासिकल डांस. ओके, दिस इज हाउ यू शुड बी नोइंग अबाउट. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 are done. ठीक है. So this is how you should remember the 8 classical dances of India. That's very very important. ठीक है. So this you should know. Let us move on. है ना. एक चीज और है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन उन्होंने पास से पूछा, मैं पीवाईक्यूज उठा के देख रहा था. So those who have not watched, those who are not aware of the 8 Nobel Prize winners, please go and watch it. अगर आपको याद नहीं है, भूल गए हो, एक बार 2 साल पहले नोबेल प्राइज इन लिटरेचर पूछा था, फिर नोबेल पीस प्राइज तो अक्सर पूछते रहते हैं. So if you have not watched it, प्लीज आप ये यूट्यूब पे सर्च करो, ऑल नोबेल प्राइज विनर 2024 करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस. ये वाला वीडियो देखना. ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इंडिविजुअल करके, लेकिन इसमें मैंने इस वीडियो में मैंने 8 का एक लाइन में डिस्कशन किया है. ऑल 8 winners are discussed in one video. So ये जरूर देख लीजिएगा. प्लीज गो एंड वॉच इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यस, लेट अस मूव ऑन. अच्छा, ये जो है कल क्वेश्चन आया था कि टेलीकॉम इंश्योरेंस सेक्टर में कौन कमेटी होती है. तो 2 कमिटीज होती है पार्लियामेंट में, एक को कहते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, एक को कहते हैं एडहॉक कमेटी. तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूं, बिकॉज इफ दे आस्क इट इन द नेक्स्ट वन तो आपको पता होना चाहिए. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है. ठीक है. और ये पार्लियामेंट्री कमिटीज में कुछ ऑफ कोर्स एमपीज के द्वारा ही बनाई जाती है. तो एक एडहॉक कमेटी होती है. एडहॉक मतलब जो टेम्परेरी होता है. एडहॉक का मतलब ही होता है टेम्परेरी. और एक होता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट होती है. ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कमिटीज. ठीक है. तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, यानी जो परमानेंट वाली होती है, दिस इज द परमानेंट वन. एक एडहॉक है, एक परमानेंट वन है. स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट वन होती है. ओके, इसके 3 बहुत फेमस कमेटी होती है. 3 सब डिवाइड में, एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड, और एक अदर स्टैंडिंग कमेटी. तो इस ये वाला जो होता है एफएससी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, इसके अंदर 3 बहुत फेमस होती है. एस्टिमेट्स कमेटी, पीएसी, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. तो इसी के अंदर आता है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज. यानी जो परमानेंट कमेटीज में के अंदर 3 तरह की कमेटी आती है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी. उसमें 3 तरह की कमेटीज होती है. कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट्स कमेटी, एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज पूछ चुके हैं क्वेश्चन. तो पीएसी जो है ना, वो सीएजी रिपोर्ट को यही ऑर्गेनाइजेशन देखती है, यही कमेटी देखती है, जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से. ठीक है. सिमिलरली एक और कमेटी होती है एस्टिमेट्स कमेटी. ये पूरे 30 लोकसभा से होते हैं, सारे इलेक्ट लोकसभा से होते हैं. ठीक है. और एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सीएजी रिपोर्ट को कौन जांच करती है, व्हिच एक्चुअली क्वेश्चन कभी भी आ सकता है. हाँ, recently we are having a new CAG, right? Now please tell me who is the new CAG of India. हालांकि अभी तक तो क्वेश्चन बन गया होगा जब न्यू CAG बनाए गए थे, बट यू शुड नो. और न्यू आरबीआई गवर्नर, सब पता होना चाहिए. और न्यू CAG. ठीक है, फाइंड आउट. ठीक है. तो ये हो गया आपका स्टैंडिंग कमिटीज. ठीक है. एंड एडहॉक कमिटीज जो होते हैं वो टेम्परेरी कमिटीज बनाई जाती, जैसे ये सब पे फ्लड मैनेजमेंट, इस सब पे एमपीलैड स्कीम पर एंड ऑल. तो ये इतना नहीं याद रखना है. ये जो स्टैंडिंग कमेटी में, जो स्टैंडिंग कमेटी में 3 कमेटीज में फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती है. ये तीनों बहुत फेमस होती है, खास की ये वाली. हाँ, सो दिस यू शुड बी नोइंग इट, बिकॉज पूछा था एग्जाम में, सो दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. हाँ, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. ये कल पूछा था क्वेश्चन में, एंड आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग. सो पीएम जन आरोग्य योजना इज नथिंग बट आयुष्मान भारत. यस, इसका आपने नाम सुना होगा, लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ वेलफेयर स्कीम. इसके लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी प्रोग्राम बनाया गया है. और इसमें 50 करोड़ इंडियंस या 10 करोड़ फैमिली, मतलब एक फैमिली में, एक हाउस होल्ड में जनरली बिलीव किया था कि 5 लोग हैं.
देयर आर 5 पीपल, तो उससे वो 50 मल्टीप्लाई करके करते हैं. हाँ, एंड तो दैट्स एक्चुअली हाउ इट इज. सो 50 करोड़ इंडियंस को सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 वाला सेंसस हुआ था उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाएगा. सो एक्चुअली ऑल आर एक्चुअली करेक्ट. सो डी इज द राइट आंसर. यस. हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल था. यस, वी हैड डिस्कस्ड इट इन पेड सेशन, आई स्टिल रिमेंबर, है ना. वय वंदना योजना करके था समथिंग. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. और ये स्पेसिफिकली सेकेंडरी और टर्शरी की हेल्थ केयर के लिए, यानी टॉप हाई लेवल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, ठीक है. और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है. दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, है ना. नेशनल हेल्थ पॉलिसी वगैरह बनाया गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाया गया, है ना. देन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर एलिजिबिलिटी डिफाइन किया जाता है ना. सो दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट. नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इस तरह का क्वेश्चन, दिस द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड 2 or 3 years बैक. तो उस टाइम पर जो करंट अफेयर्स का पार्ट था कि चमेली देवी जैन अवार्ड 2024. दिस इज एन अवार्ड गिवन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म और स्पेशली फॉर वुमेन मीडिया जर्नलिस्ट, आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन. तो इस साल किसको दिया गया? was given to whom? ज्वाइंटली लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज्वाइंटली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. What is the right answer? Yes, the right answer is Grishma Kuthar and Ritika Chopra. So the right answer is D. ठीक है, वुमेन मीडिया पर्सन को दिया जाता है. एंड दिस यू शुड बी नोइंग इट. इस तरह क्वेश्चन तो 2 years बैक 2022 या 23 में एक बार पूछा था स्लैट ने. दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. एंड ये मार्च की न्यूज है, बट यू शुड नो. सो इट हैज बीन गिवन टू, है ना. एक ग्रीष्मा है ना, ग्रीष्मा कुथर है, ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है. और रितिका चोपड़ा जो इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट है. सो दिस यू शुड नो. ठीक है. हाँ, ज्वाइंटली तो मैंने गलती से लिख दिया, अदरवाइज ज्वाइंटली नहीं लिखेंगे, अदरवाइज वो हिंट हो जाएगा कि दोनों आंसर है. यस. और चमेली देवी जैन अवार्ड जो है वो दिया जाता है आफ्टर नेम्ड आफ्टर अ फ्रीडम फाइटर, चमेली देवी जैन. ठीक है, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है. सो जस्ट रिमेंबर दैट. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. And I am expecting everyone to answer. And why it is in the news, that also you have to tell me. इनफैक्ट इसको घुमा के थोड़ा सा एलेट ने भी क्वेश्चन पूछा था. यस, कैरोस इज अ बुक रिटन बाय जेनी एरपेनबैक एंड इट हैज वन वॉट. क्या जीता है इसने? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, राइट. सो कैरोस बाय जेनी एरपेनबैक, है ना, एज वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज. माइकल हॉफमैन ने ट्रांसलेट किया था. ये न्यूज में इसलिए था कि फर्स्ट जर्मन टू विन दिस, है ना, टू विन. यस, सी इज द राइट आंसर. अच्छा, व्हाई इज ऑप्शन ए इन द न्यूज? ये भी बताओ प्लीज. टेल मी व्हाई इज ऑप्शन ए इन द न्यूज? तो जेनी एरपेनबैक को मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज. ठीक है. समंथा हार्वे को क्या मिला? बुकर प्राइज. हाँ, बुकर प्राइज फॉर विच बुक? यस, समंथा हार्वे हैड गॉट बुकर प्राइज दिस ईयर. फॉर विच बुक? बुक का नाम? ऑर्बिटल. वेरी गुड. यस. सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. हाँ, फर्स्ट साइंस फिक्शन बुक, फर्स्ट साइंस फिक्शन बुक टू गेट दैट. हाँ, यस, यू आर राइट, है ना. तो ये बुकर प्राइज ऑर्बिटल समंथा हार्वे को मिला. और कैरोस, जो ये एलेट का क्वेश्चन आया था अभी कि फर्स्ट क्यों मिला, तो फर्स्ट जर्मन राइटर है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला. और माइकल हॉफमैन फर्स्ट मेल ट्रांसलेटर है टू इंग्लिश जिनको मिला अवार्ड. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज अरुंधति रॉय. व्हाई इज अरुंधति रॉय लिंक्ड विद बुकर प्राइज? इनका इससे क्या रिलेशन है? This is also a question asked. It's a previous year question of some exam. Arundhati Roy has some link with Booker Prize. What is that? First Indian Booker Prize winner, right? What is the name of the book? First Indian, yes, to win Booker Prize. The name of the book? God of Small Things. Very good, Guru Ahluwalia, right? God of Small Things. One first Booker Prize from India side.
गुड। तो ये सब आपको इस तरह से तैयारी करनी है. दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर सो दैट चांसेस ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस आर हाई. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन पूछा था 1-2 साल पहले स्लैट में इस तरह क्वेश्चन आया था. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. हाँ, टेम्पल ऑफ सैंड गीतांजलि का इंटरनेशनल बुकर प्राइज था 2 साल पहले. यस, टॉम्ब ऑफ सैंड, आई थिंक, नॉट टेम्पल ऑफ सैंड. ठीक है, बताओ जी. एंटी डिफेक्शन लॉ ये पूछा था. दिस इज 2 years बैक आस्क्ड इन स्लैट एग्जाम. द राइट आंसर इज डी. अच्छा, आप हमको ऑप्शन ए बताओ. व्हाट इज ऑप्शन ए? 7th शेड्यूल टॉक्स अबाउट व्हाट? हाँ, 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985. वेरी गुड गुरु अहलुवालिया. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी. ये भी पूछ सकते हैं. व्हेन राजीव गांधी, मिस्टर राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. 7th schedule is related with what? नहीं, ट्राइबल वाला 5th और 6th शेड्यूल वाला है वो. ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन जो आप बता रहे हो ना, 6th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल. पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनियन. यस प्रेसिडेंट. आप ऐसे बताओ कि 3 लिस्ट मेंशन्ड है. 3 लिस्ट. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग. और 8th शेड्यूल बता दो. 9th शेड्यूल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. हालांकि 9th शेड्यूल जो है कुछ हद तक लैंड रिफॉर्म से इनडायरेक्टली रिलेटेड. जो आप गुरु अहलुवालिया आप लिख रहे हो ना, लैंड रिफॉर्म्स, तो बहुत सारे लैंड रिलेटेड लॉज जो है वो 9th शेड्यूल में. बट आई थिंक 9th शेड्यूल से है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट 8th शेड्यूल है. Languages. How many languages are mentioned in 8th schedule? How many languages were originally mentioned in the constitution in 8th schedule and currently कितना है? तो currently तो 22 है. Very good. Initially कितने थे? 14th है. Very good. So initially 14th है. Now we are having 22. ठीक है. अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब चीज मैंने पढ़ा रखा है. So I believe that you should be knowing it. मेरा एक क्वेश्चन है, मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं. Which of them is not mentioned in 8th schedule? इन 4 में से कौन सा मेंशन नहीं है 8th शेड्यूल में? ऑप्शन सी जो डोगरी है, नॉट डोगमा. डोगरी इट्स अ लैंग्वेज स्पोकन इन कश्मीर रीजन. इंग्लिश नहीं है. यस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, बिकॉज़ इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज. 8th शेड्यूल के लिए इंडियन ओरिजिन का लैंग्वेज होना चाहिए. यस, हाँ, कवर्ड इन प्रीवियस क्लासेस, बट जस्ट आई वांटेड टू नो. सो दिस यू शुड बी नोइंग. तो 9th शेड्यूल है. कुछ लोग पूछे तो मैं बताता हूँ. 9th शेड्यूल जो है ना, इसके अंदर का लॉज है कुछ. सो एक्चुअली ओरिजिनली द कॉन्सेप्ट वाज, if there is any law is put under 9th schedule, then it is beyond judicial review. ठीक है. लेकिन केस ऑफ नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जो कि 24 अप्रैल 1973 को आया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, दैट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, तब जो है एक्चुअली 9th शेड्यूल जो है वो पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा. अदरवाइज मतलब लार्जली जुडिशियल रिव्यू के अंडर प्रोटेक्टेड है, with some openings are allowed where अगर if it is a violative of basic structure then the judiciary can listen. तो 100% fool proof अब ये नहीं बचा. ठीक है. So that is what you should be know. मतलब वो ये बताए कि, और ये 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर एडिशन हुआ है लॉज का तब, उससे पहले अगर कोई एडिट है तब नहीं, because generally the judgments are prospective in nature. So if it were added after 24th April 1973, then only it can be challenged in the court, not before that. ठीक है. खैर, तो ये सब पता होना चाहिए. So D is the right answer. Let us move on to the next one. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इस तरह क्वेश्चन आता है. मैं PYQ उठा के देख रहा था 2-3 साल पुराना, तो ये पूछा था, करंट कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम. इस तरह क्वेश्चन दे डू आस्क इन स्लैट. बिकॉज मेल क्रिकेट टीम का सबको पता होता है, ठीक है, और वुमेन क्रिकेट टीम का नहीं पता होता है. तो
इसीलिए पीपल डू गेट कंफ्यूज एग्जाम में, अरे ये क्या पूछ दिया. We are asking about women cricket team, so the right answer, yes, Pradipta is right. Preston, Cooper, McDoty, Just a Chill, Guru Ahluwalia, Shervi Jain. So Harmanpreet Kaur A is the right answer to this question, है ना. अभी देखो 27 अगस्त 2024 की न्यूज है. हरमनप्रीत कौर टू लीड इंडिया इन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप स्टार, है ना. विद स्मृति मंदाना एज डेप्टी, मतलब डेप्टी वाइस कैप्टन इसको कहेंगे. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है. नाउ ये भी क्वेश्चन मैंने पता है बहुत सारे एग्जाम में देखा है. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इट. डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है ये अपने कैटेगरी में इंडिया में, और आई थिंक ओल्डेस्ट है. Yes, very good, very good, very good. People are writing. It's actually football. और 1888 में शिमला हिमाचल में खेला गया था पहली बार, है ना. Yes, so D is the right answer. Established in 1888, Durand Cup is Asia's oldest. एशिया का ओल्डेस्ट है भाई. वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है. So ये कई बार न्यूज में रहता है. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. This you should be knowing about, है ना. ये फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम. उनके नाम पर, इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्हीं के नाम पर डूरंड कप. और सबसे ज्यादा जो है मोहन बगान ने ये टाइटल जीता है. ठीक है. मोहन बगान इज अ वेरी फेमस फुटबॉल टीम बेस्ड इन बंगाल एंड ऑल. आई होप यू आर अवेयर. और बंगाल में ही काफी ज्यादा कल्चर है, मतलब ज्यादा लोग खेलते हैं फुटबॉल, है ना. जिस तरह तमिलनाडु में, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु देयर इज अ ग्रेट कल्चर ऑफ प्लेइंग चेस. जैसा अभी रिसेंटली डी गुकेश ने जीता, आपने देखा होगा, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट. सो सम कुछ कुछ रीजन्स में ज्यादा कुछ एक पार्टिकुलर स्पोर्ट्स खेला जाता है ना. ये बताओ, नेक्स्ट ईयर मार्च में 97th एकेडमी अवार्ड्स होने जा रहा है, जिसको ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं हम लोग. यस गुरु अहलुवालिया, कुछ रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, आई अग्री विथ यू, बट आपको एग्जाम में हैंडल करना होगा बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, है ना. यस, द राइट आंसर इज, देखो एक चीज समझना, अगर कभी डिफिकल्ट या बहुत टिपिकल टाइप क्वेश्चन आ जाए तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड. तो अगर अब्रप्ट है तो सबके लिए अब्रप्ट है. ठीक है, इसीलिए इतना मत परेशान होना, है ना. लापता लेडीज को ऑस्कर में भेजा गया, और कैननेस फिल्म फेस्टिवल में वो जीते थे. ऑल वी इमेजिन एज लाइक. ठीक है, ठीक है, वो याद रखना, है ना. ये लापता लेडीज जो है वो आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण राव के द्वारा बनाया गया फिल्म है, एंड इट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर 97th एकेडमी अवार्ड्स. तो डायरेक्टेड बाय किरण राव, देन आमिर खान, और भी ये लोग, ज्योति देशपांडे, दीज आर पीपल. ठीक है, इन दिस. तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना. जस्ट रीड. ये भी क्वेश्चन आया था एक्चुअली स्लैट में, मैं पीवाई की उठा के देख रहा था. तो फीमेल, जैसे फर्स्ट फीमेल एडवोकेट, फर्स्ट फीमेल सीजीआई, फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ये सब पूछा जाता है. तो फर्स्ट फीमेल एडवोकेट तो हो गया कॉर्नेलिया सुरभ जी. ये आंसर क्या है? फर्स्ट फीमेल एससी जज, है ना. सुचिता कृपलानी के लिए क्या लिखे? फर्स्ट फीमेल व्हाट इन इंडिया, बताओ. So, what should I write in case of first female CM? Very good, प्रदीप तवरी. हाँ, गुड. फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट में की थी? हाँ, उत्तर प्रदेश की. हाँ, अच्छा, अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया को तो कौन थी, देन व्हाट शुड बी द आंसर? ये भी पता होना चाहिए. पूरे इंडिया में कौन सी फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी? नहीं, एनी एरनॉक्स नहीं थी, तो नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर की, 2 साल पुरानी. ये नहीं होगा. सरोजनी नायडू. वेरी गुड, प्रदीप्ता एंड अक्ष चौधरी. राइट, सरोजनी नायडू, फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया. और कहां की थी? उत्तर प्रदेश की. अगेन सेम. ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग. अच्छा, अगर हम ये पूछे फर्स्ट फीमेल सीजीआई कौन बनेंगे? हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फीमेल सीजीआई इन 2027 इफ द सीनियरिटी रूल इज फॉलोड? ये तो बताओ ना चाहिए. हाँ, जस्टिस बीवी नागरत्ना. ये पता होना चाहिए. यस, ठीक है, गुड. ठीक है,
तो ये सब पता होना चाहिए सुचिता कृपलानी के बारे में, देन है ना, देन सरोजनी नायडू के बारे में। हाँ, एक चीज और है, फर्स्ट फीमेल यूएनजीए प्रेसिडेंट, ये भी मैंने बताया, एंड शी वाज एक्चुअली फ्रॉम इंडिया। मैंने कई बार बताया है, बिकॉज कई सारे एग्जाम से पूछा आता है। आई हैव सीन इन मेनी एग्जाम्स दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, so that is why I'm asking. There's a request, guys, everyone please press the like button and subscribe to the channel also. So yes, Vijay Lakshmi Pandit, and she was actually sister of Jawaharlal Nehru, sister of JL Nehru. Okay, एक और क्वेश्चन है कि यूएन जनरल असेंबली के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये भी पूछा आता है, which is elected from September to September. Current president of UN General Assembly. UNGA means UN General Assembly. कैमरून की कोई पर्सन, राइट, अक्ष चौधरी, फिल्मोन यंग, यस, नैतिक गुप्ता, यू राइट, फिल्मोन यंग करके नाम है, एंड ही इज फ्रॉम कैमरून। कैमरून जो है ना अफ्रीका में एक जगह है, कंट्री है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा था, मैं चूंकि बहुत सारा प्रीवियस उठा के देखता हूं, यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है अभी कौन है, और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये बताना। यूएन सेक्रेटरी जनरल, हु इज द यूएन सेक्रेटरी जनरल, और यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन सेक्रेटेरिएट के हेड होते हैं, है ना। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज यूएन सेक्रेटेरिएट एंड द हेड इज यूएन सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ, यस, पोर्चुगल, वेरी गुड, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल। तो ये सब पता होना चाहिए, आई बिलीव कि ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, सो दैट कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, वेरी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी वेरी इजीली कम इन द एग्जाम, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने पूरा यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन पर आई हैव ऑलरेडी टेकन अ क्लास, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब all about United Nation career launcher law entrance, ऐसे सर्च करना, you will get the video. Please go and watch it because United Nations are very very important for the exams. Okay, yes. Now let's move on. ये भी PYQ है, SLAT का है, तो इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हम लोग जान लेंगे। So first CGI में पूछा था, प्लीज टेल मी। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट दलित CGI बताओ। Yes, first CGI is Justice H.J. Kania and first Dalit CGI कौन थे? Yes, ये मैंने बताया ये सब। Yes, Justice K.G. बालाकृष्णन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और हु इज सुकुमार सेन, ये कौन थे? He was having a very important constitutional post. First CEC, very good, Charvi Jain, you're right, first Chief Election Commissioner of India. और ये डी वाले क्यों फेमस है? Why is Justice H.R. खन्ना so famous? अंकल ऑफ संजीव खन्ना, हाँ, यस, ही इज अंकल, चाचा जिसको कहते हैं हिंदी में, चाचा, है ना, ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना, द करंट CGI। एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट हिस्ट्री एसोसिएटेड विद दैट। हाँ, इमरजेंसी, एक्चुअली एडीएम जबलपुर केस हुआ था, सो ही पास्ड एन ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सुपरसीडेड हिम। ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट CGI because of seniority rule, but since he passed an order which was not liked by the then Indira Gandhi government, and that is why he lost his post of CGI-ship. तो हाँ, तो he जो उनको सही लगा, whatever he found right, he passed an order even if it meant losing his CGI-ship. Now, जस्टिस संजीव खन्ना के बाद नेक्स्ट CGI कौन बनेंगे?
जस्टिस, यस प्रदीप्ता ने लिखा है जस्टिस बी आर गवई, हाँ जस्टिस बी आर गवई। एंड जो ये नेक्स्ट सीजीआई जो बनने जा रहे हैं मई के आसपास है ना, 13-14 मई को, एंड ही विल बी द नेक्स्ट सेकंड दलित सीजीआई। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो आई हैव डिस्कस ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो कितना क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। So that is what the idea is. Now, first attorney general, इस तरह का मैंने क्वेश्चन देखा, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल, ये सब। There is some person who has named his ID as CJI Khanna. Okay, and he's watching live. So first attorney general, ये इस तरह क्वेश्चंस पूछा हुआ है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल मींस द फर्स्ट सीनियर मोस्ट लॉयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इज ऑप्शन, किसी ने डी मार्क कर दिया, और आर वेंकट रमन इज द करेंट वन। हाँ, MC Setalwar is the first attorney general of India and he is the current attorney general of India. Yes, Tushar Mehta, Mr. Tushar Mehta is the current solicitor general. So he is the current SG solicitor general, the second senior most lawyer, है ना, second law officer of India, ना इसको कहते हैं। SG मतलब second law officer of India कहते हैं, और attorney general को first law officer of India कहते हैं ना। और who is CK Daptari? Who is this person? CK Daptari. Waiting. First Solicitor General, right, President? फर्स्ट SG सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये थे। ठीक है, इस चार ऑप्शन मैंने जानबूझ के ऐसा चार ऑप्शन सेट किया था, एक सॉलिसिटर जनरल, एक अटॉर्नी जनरल, एक फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल, एक फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, सब चारों इसी ऑप्शन में। ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको सारा हेल्पफुल हो गया ना, एक क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, दिस वाज आल्सो आस्क्ड फ्यू इयर्स बैक इन SLAT एग्जाम। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ल्ड रिवराइन आइलैंड मतलब समझते हो, रिवर पर आइलैंड है। एक तो होता है कि समुद्र में, ओशन सी में बड़े बड़े आइलैंड्स होते हैं, है ना। तो यस ऑफ कोर्स, देखो ये बोर्नियो आइलैंड जो है, ये सब तो समुद्र में इंडोनेशिया का पार्ट है। ऊता अमेरिका में एक प्रोविंस है, कोको आइलैंड भी समुद्र में होगा। तो माजुली आइलैंड कौन से रिवर में मिलेगा? माजुली मास को GI टैग मिला था, वेरी गुड, ऊपर, ग्रेट। हाँ, असम में है। असम में कौन से रिवर पर है? वेरी फेमस रिवर, यस, ब्रह्मपुत्र रिवर, वेरी गुड। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, है ना। ब्रह्मपुत्र रिवर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर इन आइलैंड, ये सब पता होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर, है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आती है, ऐसे कुछ करके, तो यहीं पे आपको मजूरी आइलैंड मिलेगा असम में। ना मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया बिकॉज आई बिलीव कि आपको पता होना चाहिए। देखो 17 अगस्त 2024 को ये लॉन्च करना था, इनका इंडिपेंडेंस डे होता है इस दिन। उसी में नया शहर को लॉन्च किया था, हालांकि अभी भी नया शहर पूरा बन के शायद तैयार नहीं हुआ है, तो बट स्टिल यू शुड नो। व्हाट इज द ओल्ड कैपिटल? हाँ, नुसंतारा, यस, वेरी गुड। एंड द ओल्ड कैपिटल इज जकार्ता, है ना। तो आपने देखा होगा इंडोनेशिया सेलिब्रेट्स नुसंतारा द न्यू कैपिटल स्ट्रगलिंग टू टेक शेप। ओके, तो ये कहां पर है? देखो ये इंडिया है, और ये वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा इंडोनेशिया कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये जो सबसे बड़ा वाला आइलैंड है, इसको कहते हैं सुमात्रा आइलैंड। इसके नीचे वाला है जावा आइलैंड, और जावा आइलैंड में यहीं पे एक सिटी है जकार्ता। सो दिस वाज द अर्लियर कैपिटल एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड द कैपिटल टू हियर, नुसंतारा। दिस इज नुसंतारा। और ये कौन से आइलैंड में? तो इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो आइलैंड, ये वाला जो है ना, इट इज ऑन बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, हाँ, जावा आइलैंड, जावा के बगल में समवेयर हियर, यहाँ पे आपको मिलेगा, यहीं पे कहीं पे बाली आइलैंड, बहुत फेमस है। लास्ट ईयर G20 समिट हुआ था 2 साल पहले
मतलब 2022 में हियर, ठीक है। और बाली में मतलब टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है बाली आइलैंड एंड ऑल, आपने सुना होगा आई एम श्योर। है, लेट्स मूव ऑन टू, आई डोंट नो मेरा ऑप्शन डी कहाँ चला गया, इट मिस्ड इट, ठीक है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? दिस इज आल्सो नाउ क्वेश्चन आस्क्ड, तो आई बिलीव दैट यू शुड बी नोइंग इट। सो द आंसर इज एक्चुअली, अच्छा कहीं कहीं पे ना 33 लिख देते हैं, मान लो एक ऑप्शन दे देंगे 33, अब लोग कंफ्यूज कर जाएंगे 33 का 34, बट मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 33 प्लस कैप्टन, कैप्टन मीन सीजीआई, सो 34, तो 34 इज द आंसर। आप ध्यान रखना अगर ये लिखा है एक्सक्लूडिंग द सीजीआई तब 33 होगा, बिकॉज जैसे अगर मैं बताऊं कि क्रिकेट टीम है 10, तो मैं बोलता हूं 10 प्लस 1 इज 11, तो जो कैप्टन है वो भी तो मेंबर होता है, खिलाड़ी होता है ना। तो सिमिलरली द सीजीआई इज आल्सो अ जज, सो इफ इट इज, क्वेश्चन की भाषा देखना, अगर इफ इट सेज एक्सक्लूडिंग सीजीआई, ठीक है, या ये पूछते हैं इस 33 जजेस को क्या कहते हैं, देयर इज अ टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर दीस 33 जजेस, इनको तो सीजीआई कहते हैं, चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देयर इज अ स्पेशल टेक्निकल वर्ड यूज्ड फॉर द अदर जजेस व्हिच आर नॉट द सीजीआई, प्यूनी जजेस, राइट, वेरी गुड अक्ष चौधरी, प्यूनी, PUISNE लिखते हैं, प्यूनी जजेस, और उनको पढ़ते हैं ना। सो जजेस व्हिच आर नॉट द सीजीआई और चीफ जस्टिस, इवन इन हाई कोर्ट्स में भी ये लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। प्यूनी जजेस आर 33 प्लस 1 इज 34, तो जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ वुड बी 34। नाउ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ये है कि जजेस, वो जज जो सीजीआई चीफ जस्टिस नहीं है, उनके अलावा जो जजेस उनको प्यूनी जजेस कहते हैं, सिंपल तो है, PUISNE, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आस्क्ड इन स्लैट, पूछा हुआ है इस तरह क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा था, and this is very interesting, they were asking this, the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। मैं इसका मतलब भी बताऊंगा because I think it is very important to understand। I am waiting for the response guys, ये previous year question है 2 साल पुराना, so you should be knowing it। नहीं, not C नहीं है यहाँ पर आंसर, जो आता भी हिंट दे दिया। People are saying 127, no, 127 is also not the answer। Yes, Lorena, you are right, B is the right answer। It is surprising because this is a SLAT 2022 question, तो आपको पता होना चाहिए था। The right answer is 141। 142 भी मैं बता देता हूँ, 143 बता देता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यही है ना 141। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, देखो मैं बताता हूँ, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया तो जितने भी हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स इंडिया में, और जितने भी लोअर जुडिशरी है, सारे जजेस को उसी ऑर्डर के हिसाब से जजमेंट पास करना है, डिफाई नहीं करना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और कह दिया, हम हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द जुडिशियल डिसिप्लिन, दैट द हाई कोर्ट और द लोअर जुडिशरी इज पासिंग एन ऑर्डर इन सम अदर डायरेक्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी पास्ड एन ऑर्डर इन सम अदर डायरेक्शन, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बिकॉज फिर ये हो जाएगा ना, देखो जैसे इस पर काफी फेमस हुआ था, एक्चुअली क्या हुआ था ये मैं बताता हूँ। एक 5 जज बेंच ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें ये कहा गया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इज एक्चुअली अंडर आर्टिकल 342, द प्रेसिडेंट डिसाइड्स, प्रेसिडेंट मतलब इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है शेड्यूल्ड ट्राइब डिफाइन करना, व्हिच शुड बी द शेड्यूल्ड ट्राइब और व्हिच शुड नॉट बी। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज बेंच ने क्लैरिफाई भी किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 जज बेंच हैड प्रीवियसली सेड दैट द जुडिशरी शुड नॉट इंटरवीन इन दिस, दिस इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द गवर्नमेंट का काम है जुडिशरी इसमें इंटरवीन नहीं करे। लेकिन हुआ यह था कि लास्ट ईयर मणिपुर हाई कोर्ट के जज ने एक जजमेंट पास कर दिया था कि मीती कम्युनिटी शुड बी एडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। So this actually went against the previous order, the 5 judge bench order, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट was not happy। ये बहुत फेमस हुआ था लास्ट ईयर। It is clear if high court judges do not follow the constitutional bench judgment, मैंने बताया वही जो 5 judge bench order, then what should we do? The CJI, उस टाइम पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ was the CJI लास्ट ईयर, तो नाराज हो गए कि ये, हाँ, it is like very similar to a 5 judge bench order of Supreme Court being overturned by a high court, वैसा कुछ समथिंग हो गया ना, तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज 141 क्लियरली सेज
that whatever the Supreme Court has passed an order in the past, the lower judges and the High Court judges are supposed to follow it. Even the Supreme Court की जो छोटी बेंच होती है उसको भी फॉलो करना होता है. जैसे मान लो 7 सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने कोई ऑर्डर पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ऑर्डर ओवरटर्न नहीं कर सकती है. ठीक है, मान लो ये बहुत पुराना 1960 केस, अगर उसको ऐसा फील होगा 3 जज बेंच को कि 5 जज बेंच ऑर्डर गलत है, सो इट विल सेंड इट टू सीजीआई कि प्लीज मेक अ लार्जर बेंच, मान लो 7 जज बेंच और समथिंग लाइक दैट. सो इवन द सुप्रीम कोर्ट cannot defy the previous order of the Supreme Court, I mean the smaller bench. ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो मैं इसीलिए 141 बता रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. 142 समझ लो, 142 सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर देता है, ऐसा कहा जाता है जनरली. ठीक है, मतलब कहा जाता है कि 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर है ना. मतलब जस्ट रीड इट. सो it can pass any order or decree as it is necessary for doing complete justice. So this is the most powerful article which is given to a Supreme Court. ठीक है. हाँ, 141 से रिलेटेड ये भी, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया और ये कह दिया कि इंस्ट्रक्टेड ऑल लोअर कोर्ट्स नॉट टू एग्जामिन केसेस रिलेटेड टू सर्वे ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट. ये भी वही चीज है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया कि कोई भी केसेस अब जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इससे रिलेटेड नहीं देखा जाएगा लोअर जुडिशरी के द्वारा. अगेन दिस इज कम्स अंडर 141. हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए. दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स. ठीक है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से पूछा था. 143 इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो कि प्रेसिडेंट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इशू करते हैं ना, ये आपको पता होगा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. ठीक है, एक और जज वाज रिमूव, नहीं गुरु अहलूवाली उनको रिमूव नहीं किया गया. The removal process is very difficult. What you are talking about is the removal of a high court judge. The proceeding will start, but it is almost very near to impossible. Till now, no Supreme Court or High Court judge has been removed. एक हाई कोर्ट जज के खिलाफ रिमूवल मोशन जो है वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि दैट माइट बी इनिशिएटेड, बट रिमूव अभी किया नहीं गया. ठीक है, और इररिलेवेंट फॉर एग्जाम नहीं, इतना जल्दी तो नहीं क्वेश्चन पूछेंगे बिकॉज आई एम श्योर द क्वेश्चन मस्ट हैव बीन मेड है. खैर, the next one is this. Actually क्या है, मैंने देखा है कि if you see the previous year questions, they asked about cyclones कि किसने साइक्लोन, अभी जैसे एक साइक्लोन फेंगल आया था, I think 15-20 days back or 1 month back तमिलनाडु में. तो किसने इसका नाम किया, ये पूछा था क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन मतलब इस तरह क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है जो उस टाइम पर न्यूज में था साइक्लोन. ठीक है, it has been named by, I'm waiting for the response. This type of question was earlier asked. Yes, the right answer is Saudi Arabia. A is the right answer. Anonymous is right. Then Vaibhav. Yes, हाँ. A is the right answer. देखो फेमस जो साइक्लोन्स आया था, एक रीमल आया था, आसना आया था, दाना आया था और फिंगल आया था ना. तो जो इंपॉर्टेंट वन से ये बहुत अच्छी weather.com पे वेबसाइट पर इनका था, तो वहां से मैंने लिया. ठीक है, फिंगल, इससे पहले दाना आया था जो कि कतर ने नेम किया, आसना आया था जिसको पाकिस्तान ने नेम किया, और रेमल आया था ओमान ने नेम किया. यही 4 में से कोई एक पूछेंगे बिकॉज ये 2024 से रिलेटेड है. सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज 4. ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ. जो सामने सामने लिखा है नेमिंग वो याद कर लीजिएगा. बल्कि हम तो करें थोड़ा सा चारों के बारे में थोड़ा 1 और 2 लाइन पढ़ लीजिएगा कि कौन से रीजन में आया था, अरबियन सी में आया था कि बे ऑफ बंगाल में आया था, कौन से स्टेट को हेड किया था. सो जस्ट गो एंड रीड इट. ठीक है, चारों याद रख लेना. Now the next one is Fridays for Future movement is related with what? This इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है. That is why I'm asking it. Fridays for Future movement is related with what? एक साइक्लोन लैंड में, टेम्परेट साइक्लोन लैंड में फॉर्म होता है एनोनिमस. ट्रॉपिकल जो आता है वो वाटर में होता है. टेम्परेट जो अमेरिका वगैरह में आता है वो बिल्कुल लैंड में फॉर्म हो सकता है. टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में मतलब आएगा, यूएस के नॉर्थ. हाँ, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट इज रिलेटेड विद एनवायरनमेंट मूवमेंट. देयर इज अ वेरी who is the personality associated with this? One famous personality. Fridays for future movements related.
A very famous name. I want you all to know. From Sweden. Greta Thunberg. Yes. A is the right answer. Right. Very good. Greta Thunberg. ठीक है. तो Fridays for Future Movement इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है. So that's why we are discussing it. हाँ. नाउ ये क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है. इस साल काफी न्यूज में था. टीटीएस थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम. ये समथिंग इस तरह कुछ होता है. समथिंग सिमिलर टू मतलब देसी भाषा में को तो ब्लड क्लॉटिंग टाइप समथिंग हो जाता है. एंड देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ लाइक ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक लोग जैसा बोल लेते हैं उस टाइम पर न्यूज में था. तो वे किसके साइड इफेक्ट्स के कारण न्यूज में था. एंड इनफैक्ट उसमें कुछ केसेस वगैरह भी हुए थे इंग्लैंड में. वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल बट यस. और कुछ हद तक मेकर्स ने टू सम एक्सटेंट दे एक्सेप्टेड दिस आल्सो. व्हाट इज द राइट आंसर? आई बिलीव एवरीवन शुड बी नोइंग इट. कुछ लोग ए बता रहे हैं. हाँ, मेजॉरिटी आर सेइंग ए. तो द राइट आंसर इज कोविशील्ड. इसके मैन्युफैक्चरर का नाम बताइए. मैन्युफैक्चरर ऑफ कोविशील्ड. which has accepted in England. So there's an England-based company called as AstraZeneca. Yes, very good. Plus Oxford University. इन दोनों ने मिलकर बनाया था. ठीक है. अब आप बोलोगे सर सेरम इंस्टीट्यूट भी तो बना रही थी. हाँ, इंडिया में दे हैव गॉट द लाइसेंस. सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे हैड गॉट लाइसेंस इन इंडिया. बट कोविशील्ड इज नॉट मेड इन इंडिया मेडिसिन. ठीक है. ओरिजिनली मेड इन इंडिया नहीं है. जो मेड इन इंडिया मेडिसिन है वो ये वाली है, कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ये भी क्लैट का क्वेश्चन था कि कोवैक्सीन किसने बनाया. स्पुतनिक रशिया ने बनाया था, गैमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट करके उनका. और मॉडर्ना यूएसए का है. ठीक है. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. राइट. सो हियर द राइट आंसर इज कोविशील्ड. प्लीज रिमेंबर इट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. है ना. सो दैट इज व्हाट. हाँ, और बीबीआईएल जो है भारत बायोटेक जो हैदराबाद बेस्ड है. So this you should know, है ना. What is TTS? A rare condition caused by AstraZeneca's Covishield. ये बहुत फेमस आया था, न्यूज हुआ था इसमें, पूरे केसेस वगैरह हुआ था ना. So this is all about today's class. Thank you everyone. Please press the like button, subscribe to our channel. All the best for tomorrow's exam. Thanks for watching. Have a nice day.